Hello students, welcome back to the class. As we have studied in the previous section, we have studied the first part of this chapter where we all studied about the different we have studied what are organisms, the characteristics of organisms. That is, there are seven major characteristics of organism. That living organisms show movement. Second characteristic, they respire. Third characteristic, they respond to stimuli, and the fourth characteristic, they need nutrition for their body to build up. And then fourth is that they show excretion, where they exit out all the waste product from their body. And then sixth one is that they reproduce, and the seventh one was growth. Okay, so if we see in the in organism, if they show these seven major characteristics, then we will call them out as living organisms. Okay, now we're going to study about the second section of this chapter, which is all about the habitat of living organisms. Now we are going to study about the new term in your syllabus, which is the habitat. So before going to before I'm going to tell you about what is habitat, I am going to ask you, where do you live? Yes, it's very simple question. Where do you live? You will, I know you will say that we live in a home. Okay, now I'm going to ask you, where do all these or animals and plants live? This is in on your screen. There is a question. Wolf, where do you think they will live? On the land, forest, river, mountains, desert? Yeah, in the forest. Camel in the desert, sheep in the mountains, dog on the land, bird in the air, but ultimately its nest on the tree, right? And the tree is in the forest. Okay, so bird is also in the forest only. Tiger, forest, dog on the land, cactus, desert, tortoise on the land, and water also, right? So what does it show? This shows that every living organisms have their home, where they go inside and live comfortably, right? This home will provide them shelter, air, water, all the resources which the organisms require to survive well. Okay, that all resources is provided by the habitat. So I think you all guess it right, that habitat is nothing but the home. Okay, the home of different living organisms in reference to the abiotic components such as forests, hills, mountains, water, etc. So now you will ask me, where this abiotic components come, ma'am? What is this abiotic components? So students, I want to tell you that there are two major components. Two major components. These are abiotic and biotic. Okay. Since bio means life, so it constitutes of all the living organisms, right? And abiotic means non-living. Okay. So it constitutes of all the non-living components. So habitat is something which all living organisms where all living organisms lives in response to their surrounding. Okay, forest, hill, mountain, water, कहीं पे भी रह सकते हैं. Okay, अब हमें जानना है कि ये हैबिटेट के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं. ओके ओके, तो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि हमारे पास दो तरीके के हैबिटेट हैं. एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है और एक्वेटिक हैबिटेट है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट है जहां सारे जीव, कौन से जीव, एनिमल्स और प्लांट्स, वो सारे जीव जहां लैंड पे रहते हैं. ठीक है, तीन तरह के टेरेस्ट्रियल डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है: डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड ग्रासलैंड. ओके, और एक्वेटिक में हम पढ़ेंगे ओशियंस और पॉन्ड्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. तो दो तरीके के मेजर हमारे पास हैबिटेट है, एक टेरेस्ट्रियल
और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को 3 भागों में सब डिवाइड करा गया है, जो है डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड, और एक्वेटिक को ओशन और पॉन्ड्स में सब डिवाइड करा है। हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल कौन कौन से हैबिटेट में रहते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, गिव एग्जांपल्स। ओके, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट एनिमल्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स एनिमल्स, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल लिस्ट एंड दिस टेबल विल help you to learn them very easily, students. Okay, so in deserts we all know camel live, but there are some more animals which live inside the live in the desert, but they are not what you call they are just adapting, they are just adjusting there. Okay, these are snakes, rats, which lives in burrows because there are extensive amount of heat in the desert area. So in order to survive, they need to burrow. They need to make their home in deep inside the sands. Okay, so they dig deep, 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 and make burrow kind of structure. Burrows is nothing like a deep canal, deep tube-like structure in the land, in the sand. Okay, so there they live, the snakes and the rats, and the plant which is present in the desert area is cactus. Okay, next is mountains. We all know yak is there, snow leopard, mountain goat, and in plants, pine and deciduous. We have to learn about the plants examples also. Okay, please don't ignore the examples of plants there. It is important. Grasslands में कौन है? Lion, deer, dog, or cats, tiger, mango tree, apple, banyan tree, etc. Okay. Now aquatic habitat. The plants animals that live in water are called aquatic animals. Ocean के example है fishes, whales, dolphins, seahorse, turtles, algae, seagrass, etc. Ponds के frogs हैं, small fishes, ducks, water lilies, and lotus. You can take a screenshot of this slide or you can write it, note it down. This is a very easy slide for you to learn. Okay, by this slide it makes you very easy to learn about the examples. Okay, now in the second slide there is the one more part of this chapter which tells you about the adaptation. What does this adaptation means? मैंने आपको बताया था कि जब कोई हमने ये बताया था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है अपने स्टिमुलाई को। वो क्या करना चाह रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है अपने आप को। अगर मान लो हमारे को ही समर सीजन आ गया, तो हम वुलन कपड़े थोड़ी ना पहन के रहेंगे। हम अगर वुलन कपड़े ही पहनते रहेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे समर सीजन में। ओके, हम मर भी सकते हैं। ऐसी भी पोजीशन आ सकती है जिसमें हमें बहुत स्वेटिंग हो, बहुत गर्मी लगे, क्योंकि हमने वुलन क्लोथ्स पहने। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करा? हमने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स भी क्या कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग्स के अनुकूल होने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं चीजों को। ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन। Adaptation is refers to as the phenomena where the living organisms make some changes in their body and behavior in order to better survive in the provided habitat और environment, अपने surroundings के अनुकूल रह सकें। आज की डेट में भी जब मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो हम सबको क्या जरूरत पड़ रही है कि हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बन रहे हैं, स्मार्ट ह्यूमन बींग्स बन रहे हैं, स्मार्टफोन्स चला रहे हैं, स्मार्ट चीजें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर हमने ये नहीं किया तो हम स्ट्रीम अपने जो हमारी लाइन है सबसे अलग हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे हमसे। ओके, so we are learning all of these technologies. Okay, we are adapting things, right? Now we will study more about this. ओके, द नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारे आसपास का इज कीप ऑन चेंजिंग एंड फॉर द मैटर ऑफ द सर्वाइवल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स आल्सो कीप ऑन अडेप्टिंग द ट्रेट्स मींस characteristics that helps them in their existence means जिंदा रहने के लिए हमको चीजों को अपनाना होगा,
अडेप्टेशन यानी अपनाना, उन चीजों को हमको अपनाना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो हम एक स्ट्रीम लाइन में नहीं रह पाएंगे, जो एक लाइन चल रही है लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे और हम लोग कहीं पिछड़ जाएंगे, राइट, हम बैकवर्ड हो जाएंगे। तो वी हैव टू अडेप्ट। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी कुछ जो भी हमने अभी तक हैबिटेट पढ़े हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताती है जिसमें वहां रहने वाले जीवों ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया ताकि वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस में रह सकें, एग्जिस्टेंस कर सके, बेटर सरवाइव कर सके। ओके, तो कैमल एक डेजर्ट लैंड का जीव है। वो क्यों वहां पर है? क्योंकि उसके लॉन्ग लेग्स हैं टू वॉक ऑन द हॉट सैंड, उसका थिक फर है, हम्प है उसके ऊपर। आप देखते हो ये कैमल के ऊपर ये हम्प सी रहती है। वो क्या करती है ये हम्प? उसके फूड और वाटर को स्टोर कर लेती है ताकि वो लंबा जब चलता रहे तब भी वो खाना थोड़ा थोड़ा अपनी हम्प से निकाल कर खाता रहे। वहाँ के स्नेक्स और रैट्स भी मैंने आपको बताया बरोज में चले जाते हैं क्योंकि दिन के समय बहुत एक्सटेंसिव हीट होती है और वो रात के समय बाहर निकलते हैं। कैक्टस कैक्टस अपने आपने देखा होगा कैक्टस के लीव्स कैसे होते हैं, उसके लीव्स मॉडिफाइड होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं किससे? थॉर्न से, स्पाइंस से। वो क्या करते हैं स्पाइंस? वो रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को। हमने ये पढ़ा था बच्चों कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या है? जो प्लांट्स के अंदर होने वाला पसीना या वेस्ट जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो बाहर निकाल देती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्वेट की तरह पानी बाहर निकल आता है। पर कैक्टस को तो अपना पानी रिटेन करना होगा ना, अपने पानी को बाहर अगर वो जाने देगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो स्पाइंस क्या करते हैं? उस पानी को रिटेन कर लेते हैं, जो भी पानी उनको उनके जो पूरा पूरा जो कैक्टस प्लांट है वो स्टेम की तरह मॉडिफाइड हो जाता है और उसके अंदर के लीव्स जो है स्पाइंस की तरह होते हैं जो पानी को रिटेन करके रखते हैं और वो जिंदा रह पाता है। माउंटेन्स में जो याक है वो जीव का उसके बहुत मोटी स्किन होती है ताकि वो कोल्ड से अपने आप को बचा सके। और स्नो लेपर्ड का भी थिक फर होता है। माउंटेन गोट के स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं ताकि वो बड़े बड़े स्नो वाले माउंटेन्स में चल सके। पाइन और डेसिडियस प्लांट्स की आपने देखी होगी शेप कैसी होती है बच्चों? ऐसी ऐसी होती है। हमने वहाँ के जो देखते हैं हम वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं माउंटेन्स में वो इस तरह से दिखते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो उसके ऊपर की जो स्नो है वो स्लिप अवे हो सके, राइट, नीचे गिर सके। ठीक है, अगर स्नो पेड़ों पे लगी रह गई तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो खाना नहीं बन पाएगा ट्री का। इसलिए वो अपने ऐसे वहां पे इस तरह से हमको ट्री देखने को मिलते हैं स्नो वाले एरिया में। ग्रासलैंड में जो कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक हमने देखा है कि हमारे आसपास के जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे ग्रासलैंड पे वो अपने सराउंडिंग के अनुसार उनका कलर होता है। ओके, तो क्लोजली रिसेम्बल टू द एनवायरमेंट, उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लॉज की तरह। क्यों होता है ऐसा? ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सके, राइट, अपने आप को हाइड कर सके। ठीक है, अपने आसपास की तरह को कलर को अपना लेना इस कैमोफ्लॉज। ओके, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बनियान ट्री ये इंटेंसिव ग्रीन कलर में होते हैं ताकि उनकी जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और खाना बना सकें। ये तो हो गई हमारी बात टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है। ओशियन में जैसे फिशेस, व्हेल्स और डॉल्फिन होती हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों? इनकी बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन की तरह, इस तरह से पॉइंटेड, ताकि वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती रहे, स्विम कर सके, राइट। तो इन्होंने अपने बॉडी को क्या किया है? अडेप्ट किया है पानी के अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। Octopus present deep inside water, but when it swims, it turns its body in streamlined form. एक ऑक्टोपस जो होता है उसकी उसकी बॉडी जो है वो डीप इनसाइड पानी रहता है, लेकिन जब वो स्विम करता है तो अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट कर लेता है, स्ट्रीमलाइन की पोजीशन में कर लेता है और ऊपर आ जाता है। ठीक है, अडेप्ट करता है। डॉल्फिन और वेल्स के अंदर गिल्स नहीं होते जिससे वो ब्रीथ कर सके, उनके अंदर ब्लो होल्स होते हैं और नॉस्ट्रल होते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया? अपनी बॉडी में चेंजेस लाए, अडेप्ट किया, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज किया ताकि वो अपने आसपास रह सके। ठीक है, और पॉन्ड्स में फ्रॉग होते हैं जो
बोथ ऑन लैंड एंड वाटर रह सकते हैं। पॉन्ड्स के जो प्लांट्स के एग्जांपल है वाटर लिलीज और लोटस, इनके जो रूट्स होते हैं अंडर वाटर होते हैं, लेकिन उनका अपर हाफ पार्शली मतलब आधा जो है पानी में होता है और नीचे थोड़ा स्टेम उसमें सैंड में होता है। ठीक है, क्यों होता है? ताकि वो ऊपर से जो सन की लाइट है वो ट्रैप कर सके, आधा बाहर शरीर होता है आधा अंदर होता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके ताकि वो खाना बना सके। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे इन जीवों ने अडेप्टेशन करी और अब वो अपने एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने आसपास रह पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही है कि हैबिटेट क्या है। आप सभी को पता है हैबिटेट घर, होम कहलाता है। ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड, शेल्टर, वाटर, एयर एक्सेट्रा, सब चीजें असेस कराता है एक घर। ओके, ताकि कंफर्टेबल ऑर्गेनिज्म रह सके। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? लीव्स जो है रिप्लेस हो जाते हैं स्पाइन के फॉर्म में, और वो स्पाइन वाटर रिटेंशन का काम करते हैं ताकि पानी उसमें स्टोर हो सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी कर सके कैक्टस। Fill in the blanks. The presence of specific features which enable a plant and animal to live in a particular habitat is called adaptation बच्चों। ठीक है, अडेप्टेशन ही तो एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने आप को चेंज करके, अपने बिहेवियर को चेंज करके जी पा रहा है। The habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Soil, water and air are the कैसे फैक्टर्स हैं, ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। चेंजिंग इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। Which of the things in the following that are listed as non-living? Plow, mushroom, swing machine, radio, boat, water hyacinth, earthworm। ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं, नॉन लिविंग है। बहुत सारी है यहाँ पे, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सब हमारी नॉन लिविंग है। प्लो, प्लो क्या है बच्चों? लैंड होता है। ओके, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे फार्मर अपने अपने प्लांट्स को उगाता है। ओके, give an example of non-living thing which shows any two characteristic of living things। ये मैंने आपको पढ़ाया है, दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग की रखता है लेकिन बाकी सब उसका नॉन लिविंग होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कार मूवमेंट करती है, राइट, न्यूट्रिशन भी ले रही है लेकिन रेस्पायर नहीं कर रही। ठीक है, which of the non-living things listed below were once part of living thing? बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं ये। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो सब आप लिख देंगे। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, स्टिमुलाई, ग्रोथ, ये सब आप लिख देंगे। Explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there। क्यों important होती है स्पीड? क्योंकि मैंने आपको बताया वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सके, वो किसी का प्रे ना बन जाए, किसी का शिकार ना बन जाए। प्रे यानी कि शिकार ना बन जाए, तो अपने आप को स्पीड की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डियर को टाइगर खाने आएगा तो नेचुरली डियर क्या करेगा? अपनी स्पीड, अपनी जितनी स्पीड में वो भाग सकेगा, राइट। तो इसलिए स्पीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द प्रीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, that's all for the chapter. Please let me know if if you find any doubts. Okay, till then we will meet in the next class. Okay, thank you.